ہے تو وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی قربانی چھوڑ دے. پہلے اپنے بھائی سے میل ملاپ کر جا کر، پہلے اپنے بھائی کے ساتھ صلح کر، پہلے اپنے بھائی کے ساتھ محبت کر، اس کے بعد آ کر آمین ہاللویا. آج ہم کس چیز پر بات کر رہے ہیں؟ معافی اور محبت کے بارے میں. کس چیز کے اوپر؟ معافی اور محبت کے بارے میں. اگر ہم پرانے عہد نامہ کی طرف غور کریں، پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں بہت خوبصورت مثال ملتی ہے مقدس یوسف کی. مقدس یوسف جب 17 سال کے تھے تو 17 سال کے اندر وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیر بکریاں چرایا کرتے تھے. اپنے بھائیوں کے ساتھ بیر بکریاں چرانے کا کام سر انجام دیتے تھے. اور مقدس یوسف کا جو باپ تھا، یعقوب تھا، اسرائیل تھا، وہ اپنے بندہ سے بڑی محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا. تو جو اس کے بھائی تھے وہ اس سے کینہ رکھتے تھے، اس سے غصہ کرتے تھے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینکا تو خدا نے اس کو مصر کا حاکم بنایا. تو جب ہم آگے اس کی خدا کے مقدس یوسف نے اپنے بھائیوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. خدا نے اس کو مصر کا حاکم بنا دیا جو فرعون کے نیچے کام کرے. ہاللویا. جب ہم معاف کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر سے قرض کو اتار دیتے ہیں. جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو ہم اپنے اوپر سے کیا کرتے ہیں؟ قرض کو اتار دیتے ہیں. اور ہمارا آسمانی باپ بھی ہم کو کیا کرتا ہے؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. گناہ انسان کے اندر کیا لیتا ہے؟ جنم لیتا ہے جب ہم معاف نہیں کرتے. جب ہم معاف نہیں کرتے تو ڈیفرنٹ قسم کی باتیں ہمارے اندر جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں. ایک دوسرے سے نفرت شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت شروع ہو جاتی ہے. لیکن خدا کا کلام آج میرے اور آپ سے مخاطب ہے کہ ہم نے معاف کرنا سیکھنا ہے. ہم نے کیا کرنا سیکھنا ہے؟ معاف کرنا. اور ایک دوسرے سے محبت، پیار، کیونکہ ہمارا خدا کیا ہے؟ محبت ہے. ہمارا خدا کیا ہے؟ محبت ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ معاف کرنے سے ہم اپنے آپ کو قید میں ڈال لیتے ہیں. نہ معاف کرنے سے ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ قید میں ڈال لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے دل کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اگر ہم خدا کے خادم کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں تو ہم چرچ نہیں آتے. اگر ہم اپنے بہن بھائی کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں تو ہم اس کو بلانا پسند نہیں کرتے. اگر ہم اپنی والدہ کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں تو ہم اس کو بلانا پسند کرتے. اگر میاں بیوی آپس میں ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کو آپس میں دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے. لیکن خدا کا کلام آج ہم سب سے مخاطب ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں. ایک دوسرے کو کیا کریں؟ معاف کریں، تاکہ ہمارے لیے آسمان کھل جائے. خدا کی اچھی اچھی برکات جو نوروں کے باپ سے آتی ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہو؟ نازل ہونا شروع ہو جائے. ہاللویا. ہاللویا. آگے ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا. ابھی ہم نے بات کی معافی کے تعلق سے. کس کے تعلق سے؟ معافی کے تعلق سے. آگے ہم دیکھیں گے محبت کے تعلق سے. پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت. سے گزارش ہے کہ خدا کے خلاف لکھا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے. خدا محبت ہے اور جو محبت خدا میں قائم رہتا ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے. ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے بہت خوبصورت آیت کو سنا کہ خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ God is love. خدا کیا ہے؟
सब कहेंगे खुदा क्या है? खुदा क्या है? खुदा क्या है? और हमें भी क्या करनी है? एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, एक दूसरे से प्यार करनी है। बेटा माँ से, बेटा बाप से, बेटी माँ से, सारे जो अपना रिश्तेदार के अंदर कनेक्शन है, सबने एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी है। आपने अपने खादम के साथ मोहब्बत करनी है, दिलो जान से। खुदा के खादम आपके लिए रातों को उठ उठ कर दुआएं करते हैं, आपके लिए जागते हैं, आपकी रूहों के लिए शिफायत करते हैं, रातों को जागते हैं कि आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आए, कोई परेशानी ना आए। आपने इनके साथ मोहब्बत करनी है। तो हम क्या कर गए? जान गए। खुदा के कलाम के अंदर यूं लिखा मिलता है कि खुदा ने दुनिया जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना क्या किया? इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या पाए? जिंदगी पाए। जिंदगी मेरे और आपके आका खुदा यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। दुनिया में बहुत से नबी आए, बहुत से पैगंबर आए, बहुत से रसूल आए, लेकिन जिंदगी मेरे और आपके आका खुदा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के कलाम में से पढ़ा कि जो मोहब्बत खुदा को हमसे है हम जान गए। हालेलुया। हालेलुया। ओह यस। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है। आपको खुदा को आपके साथ मोहब्बत है तो आप इस जगह पर बैठे हो। खुदा को आपके साथ मोहब्बत है तो आप इस जगह पर बैठे हो, वरना पूरी दुनिया भरी पड़ी है। खुदा के कलाम में लिखा मिलता है कि तुम शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम हो, खुदा की खूबियां जाहिर करने के लिए बुलाए गए हो। तुम आम कौम नहीं हो, तुम आम पर्सनालिटी की इबादत नहीं करते, तुम उस खुदा की इबादत करते हो जो सदरक, मिसक, अब्दल, नजूम को आप आग की भट्टी में से निकाल। हालेलुया। और खुदा क्या है? मोहब्बत है। आगे हम पढ़ेंगे, हमें उसका क्या है? यकीन है। उसके बाद हम देखते हैं खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है। जो किस में कायम रहता है? मोहब्बत में कायम रहता है, वो खुदा में कायम रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, और खुदा उसमें कायम रहता है। क्या बात है! ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा उसमें कायम रहता है। जो मोहब्बत के अंदर कायम रहता है, खुदा उसके अंदर कायम रहता है। आज के दौर के अंदर हम देखते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते, लेकिन खुदा का कलाम हम सबसे मुखातब है, मेरे और आपसे मुखातिब। तुमको इसके ऊपर पेशवा मुकर्रर किया था, लीडर मुकर्रर किया था। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है, ये हम सब के लिए है। खुदा का कलाम आईना की मानित है, जो हमारी गलतियों को, हमारी खताओं को हमारे सामने कर देता है। हालेलुया। आगे हम एक और हवाला देखेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब उसकी पहली आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब उसकी पहली आयत। यहाँ पर यूं लिखा मिलता है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती छाछ। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को ये खत लिखते हैं कि अगर मैं आदमियों को भी ज़बानें बोलूं, फरिश्तों की भी ज़बानें बोलूं, मैं PhD कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ नहीं, क्योंकि मोहब्बत अफजल है। अभी हमने पीछे हवाला पढ़ा कि जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदावंद में। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ नहीं। कहता है कि मेरा ईमान इतना हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं तो मोहब्बत ना रखूं तो मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं।
ये मोहब्बत एक बहुत बड़ा भेद है। मोहब्बत, जो इंसान अपने अंदर मोहब्बत का बीज बो लेता है वो तरक्की कर जाता है। जो इंसान अपने अंदर मोहब्बत का बीज बो लेता है, जब मोहब्बत का बीज दरख्त की मानिंद तनावर भरता है तो वो तरक्की कर जाता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे क्या फायदा। मोहब्बत साबर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नासेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। ये सारी क्वालिटीज, ये सारी डिग्रीज जो है ये मोहब्बत के अंदर पाई जाती है। अगर हमारे अंदर मोहब्बत है, हमारे अंदर प्यार है, हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत कायम है, तो ये चीजें हमारे अंदर पाई जाएंगी। मोहब्बत क्या है? साबर है। मोहब्बत क्या है? साबर, यानी कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना। अगर किसी ने गलत बात हमसे कर दी है, हमने उसको डिफरेंट गलत जवाब नहीं देना, हमने उसकी बात का बर्दाश्त करना, ताकि वो जाने ये जिंदा खुदा के पैरोकार हैं, ये जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। लोग मसीही लोगों की तारीफ करते हैं कि ये लोग ईमानदार हैं। लोग मसीही लोगों की क्या करते हैं? तारीफ करते हैं कि मसीही लोग क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। इनके अंदर मोहब्बत पाई जाती है, इनके अंदर प्यार पाया जाता है। खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रसूल करंतस की कलीसिया के नाम खत लिखते हैं कि मोहब्बत क्या है? साबर है। और मोहब्बत क्या है? मेहरबान है। मोहब्बत एक दूसरे के ऊपर मेहरबान हो जाती है। और आगे हम देखेंगे, मोहब्बत हसद नहीं करती। हालेलुया। मोहब्बत हसद नहीं करती। आज के दौर में क्या होता है? कोई बंदा तरक्की कर रहा है, कोई बंदा ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, तो हमारे जो लोग हैं उससे हसद करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हम सबसे मुखातिब है कि हमने हसद नहीं करती। मोहब्बत हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नासेबा काम नहीं करती। हालेलुया। अपनी बेहतरी नहीं चाहती और बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब बातों की बर्दाश्त, सब बातों की क्या करती है? बर्दाश्त। मेरे अजीजों, इफ्सियों की कलीसिया के नाम जब पौलुस रसूल खत लिखते हैं, उसके 3 बाब और उसकी 13 आयत के अंदर, तो कहते हैं कि तुम एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे को मुआफ कर दिया करो। अगर कोई गलत बात तुझे कहता है तो उसे मुआफ कर दे, ताकि तेरी जो बरकत है वो बहाल रहे, तेरे अंदर जो है वो गुनाह जन्म ना लेने पाए, तेरे अंदर जो है वो नफरत जन्म ना लेने पाए। तो एक दूसरे को मुआफ कर दिया करो और एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। हालेलुया। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाए तो खुदा की बरकत हो। मैं कल में जो कलाम बताया कि कसूरवारों को माफ़ करें, ये हमारे यीशु मसीह ने भी हमें दुआ में सिखाया है। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। बहुत अच्छा कलाम सुनाया है। इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले और खुदा हम सब के साथ हो। आपके साथ खुदा का शुक्र हो। हम सब सरों को झुकाएं और कलाम के लिए दुआ करें। कदूस 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 है मेहरबान यीशु, हम तुझे कदूस कदूस करके पुकारते हैं। तेरी हजूरी को महसूस करते हुए तुझसे दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, मेहनत करते हैं। तेरे खुदावंद खुदा, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस कलाम के वसीला से हमारे दिलों को और मजबूत कर और नक्श कर, ताकि तेरे नाम को जलाल दे सकें। तेरे खुदावंद दिल के अंदर जो नक्श हुई है, तेरे खुदावंद उस नक्श हुई किताबों
ख्यालों को हम तेरे बयान करें मेरे खुदा ताकि तेरे नाम को जलाल दे सके। जलाल के बादशाह ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे पाक और जिंदा जलाली नाम से, आमीन। अब वक्त हुआ चाहता है कि आज भी चूँकि काफ़ी मतलब मसरूफियात की वजह से हम इसको फिर आज वाइंड अप करने लगे, पर मेरे अंदर आया कि नहीं, जो काम हमने शुरू किया अब उससे आगे भी लेकर जाएं। हालेलुया, ठीक है। तो खुदा के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे। अभिषेक तो जाके और पालूस रसूल इसके बारे में रोटी जो खून है इसके ताल्लुक से क्या मुकाशफा जो है खोलता है। पहला करंथियों बाब नंबर 11 आयत नंबर 23 तो आयत नंबर 24 पढ़ें तो बल्कि 25 भी पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली, क्या ली, और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। खुदावंद इस कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे। सारी जमात मिलके के खुदावंद आपका शुक्र, आमीन। आइए हम सबसे पहले अपना एक कपल आए, एक जोड़ा आए और ये जो है इस रस्म मुकद्दस रस्म को जो है आकर अपनाए और इसको पूरा करें। कोई भी एक जो है जोड़ा आ जाए सामने, कोई भी जल्दी से जी आ जाए, जल्दी से आ जाए, आ जाए पुत्र, आ जाए। क्या है जी? तरतीब का, ठीक है। तो मैं बड़ी तरतीब के साथ इस शेरवानी ओके, हाथ में रखिएगा, हम मिलकर खाएंगे जब मैं कहूँगा आपको, ठीक है। जल्दी से, जरा जल्दी जाएं, आगे। और बताना चाहता हूँ प्यारे भाई मोहसिन जो हैं और इनकी मिसेस ये इसे तैयार करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं और ये जो है अपना बाहर से बाजार से डिब्बा नहीं खरीदते, घर में तैयार करते हैं। क्या करते हैं? घर में तैयार करते हैं। तो इनकी इस खिदमत के हम शुक्रगुजार हैं। और प्यारे भाई शानदार से यहाँ शायरबानी की रस्म में शामिल भी होते हैं और इसे तैयार करके लेकर आते हैं। जब आप दुआ में ठहरेंगे तो एल्डर मोहसिन जो है इसको भी आपने अपनी दुआ में याद रखना है कि खुदा इससे और खिदमत ले और बढ़ाए से।